الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ممبر رسول پہ جلوہ افروز پیر طریقت رہبر شریعت حضرت العلامہ مولانا مفتی الشاہ شہنواز اظہری صاحب مانک پور شریف، شہنشاہ ترنم علی جناب سید حیدر علی صاحب علی گڑھی، اور محترم کرم فرما بڑے بھائی مولانا پرویز عالم اشرفی صاحب نقیب اعظم ہندوستان، ممبر رسول پہ بیٹھے علماء کرام، پیش نظر بیٹھے مقدس سامعین کرام، پردہ میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین خواتین اسلام، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے ایک بات کا احساس ہے کہ آپ لوگ چندہ دیتے دیتے تھک چکے ہیں، اس لیے جب سے پروگرام شروع ہوا ماشاءاللہ چندہ پہ چندہ، چندہ پہ چندہ، چندہ پہ چندہ، کتنے چچا لوگ ٹینشن میں ہوئے۔ یہ مولانا لوگ جلسہ کراتے ہیں صرف چندہ کے لیے کہ نہیں میرے دوستو، یہ مدرسہ ہے تو علماء ہے کہ نہیں؟ یہ مدرسہ ہے تو آپ کو ایک اچھا نقیب کون دیتا ہے؟ مدرسہ دیتا ہے۔ اچھا خطیب کون دیتا ہے؟ مدرسہ دیتا ہے۔ اچھا ناظم کون دیتا ہے؟ مدرسہ دیتا ہے۔ اچھا قاری کون دیتا ہے؟ مدرسہ دیتا ہے۔ اچھا مفتی کون دیتا ہے؟ مدرسہ دیتا ہے۔ اچھا پیر کون دیتا ہے؟ مدرسہ دیتا ہے۔ یقیناً آپ مضبوط کرو گے مدرسے کو، آپ مضبوط ہوگے۔ آپ مضبوط کرو گے مدرسے کو، آپ کے گھر میں ترقی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہو ہم کامیاب رہیں، کامران رہیں، بس اپنے گاؤں کے مدرسے کو مضبوط کر دو، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے انشاءاللہ۔ سپورٹ کریں گے کہ نہیں سب لوگ؟ سبحان اللہ، سارے لوگ سپورٹ کیے ہیں تبھی الحمدللہ جو یہ عمارت نظر آ رہی ہے۔ گاؤں والوں کی محبت اور خلوص کا یہ نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب میں اتفاق، اتحاد اور خلوص عطا فرمائے تاکہ تیزی کے ساتھ اور کام ہوتا رہے۔ حضرات آئیے ہمارا سب سے پہلے نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ بانداز غلامانہ پڑھنے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ سننے کے موڈ میں بیٹھے ہوئے کہ نہیں؟ زیادہ دیر نہیں، بس انشاءاللہ تعالیٰ ایک گھنٹے کے اندر انشاءاللہ ہم اپنی بات مکمل کر دیں گے۔ کام کی بات جو آپ یہاں رہ کر ہی نہیں بلکہ یہاں سے جانے کے بعد بھی جھومیں گے۔ یہ تقریر انشاءاللہ کل پرسوں تک نہیں بلکہ برسوں تک یاد رکھیں گے، سنیں گے کہ نہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ، ادھر والے بولے یا رسول اللہ۔ اپنی عادت نہیں ہے لیکن کچھ ماحول بنانا پڑتا ہے، بولے یا رسول اللہ۔
آج سب کے لیے نہیں اپنے رب کے لیے اکٹھا ہوئے ہو، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ۔ آج تو خواجہ غریب نواز کا عرس ہے، صرف ہندوستان ہی کے لوگ نہیں بلکہ بیرون ممالک میں بھی خواجہ غریب نواز کا عرس سے منایا جاتا ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ بولے کوئی سنے یا نہ سنے میرے خواجہ سنے، بولے یا غریب نواز، یا غریب نواز، یا غریب نواز، یا غریب نواز، ہند کا راجہ، بولے ہم سب کا خواجہ، ہند کا راجہ، ہند کا راجہ، ہند کا راجہ۔ بس اسی انداز میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دبائها وعافیة الابدان و شفائها ونور الافصار و ضیائها وعلى آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو شخص محبت سے مجھ پر درود پڑھے گا میں بروز قیامت میں اس کو اپنی چادر تطہیر میں چھپا لوں گا۔ بولے بچر کے سبحان اللہ۔ کوئی خفیف العقل کم ظرف آدمی کہے نہ جانے نبی پر کتنے عاشق ایسے ہیں جو روزانہ بے شمار انداز میں درود شریف پڑھتے ہیں، کتنے لوگ کو اپنی چادر تطہیر میں چھپا لیں گے۔ ہم کہیں گے نادان، وہ تو رسول ہے، وہ تو سید الرسول ہے، وہ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور وہ تم کو خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں۔ عالم تصور میں اپنے سب لوگ سامنے یہ دیکھیں کہ میں گنبد خضرا نہیں بلکہ خواجہ غریب نواز کے سائے کے نیچے بیٹھا ہوں، ان کے گنبد کے سائے کے نیچے بیٹھا ہوں، اور میری آنکھ ہی نہیں بلکہ میرا دل بھی وہاں حاضر ہے۔ یہ تصور کے ساتھ سارے لوگ بیٹھے، میں یہ کہتا ہوں جو انسان یہ کہتا ہے کہ کیسے نبی اپنی چادر تطہیر میں چھپا لیں گے، میں کہوں گا نادان تو سن، میرے نبی کی شان ہے بہت بڑی، اب میرے نبی کا مقام ہے بہت بڑا، تم میرے نبی کی شان میں انگلی اٹھانا بعد میں، چل تھوڑی دیر کے لیے عطائے رسول ہندن ولی خواجہ خواجگان خواجہ ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی بہشتی جب دیکھ لگنے سے کوزے میں پورے بنا ساکر کے پانی کو لے لیا، ارے جو نبیوں کے نبی ہیں، جو رسولوں کے رسول ہیں، جو پیغمبروں کے پیغمبر ہیں، ارے جب عطائے رسول ہندن ولی خواجہ خواجگان خواجہ ہندوستان ایک لگنے سے کوزے میں بنا ساکر کو لے سکتے ہیں تو بروز محشر میرے مصطفیٰ پوری امت کو اپنی جان تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور غریب نواز۔ بولیے بھائی، جب خواجہ غریب نواز ایک ننھے سے کوزے میں پورے انا ساگر کو لے سکتے ہیں تو میرے نبی ہم گناہگار کو اپنی چادر تطہیر میں چھپا سکتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کی بات آئی تو ایک بات اور سنتے چلے، جب خواجہ غریب نواز جب اپنا پڑاؤ اجمیر شریف میں ڈالے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ سب سے پہلے وہاں قیام کیے جہاں پر راجہ کے اونٹ بیٹھا کرتے تھے، جہاں پہ راجہ کے اونٹ بیٹھا کرتے تھے۔ دنیا یہ کہتی ہے، دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں مسلمان کو ختم کر دیا جائے، مسلمان کو نیست و نابود کر دیا جائے، مسلمان کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ کوئی پلاننگ یہ کرتا ہے کہ مسلمان پر تہمت لگا کے ان کو نیست و نابود کر دیا جائے، مسلمان کے دل سے خوف، مسلمان کے دل سے ڈر کو نکال، مسلمانوں کے دل کے اندر ڈر پیدا کیا جائے، خوف پیدا کیا جائے، دہشت پیدا کیا جائے تاکہ یہ لوگ ڈر جائیں کہ ہندوستان میں انسان جیتے جیتے مر جائے گا۔ جب انسان یہ خیال کرنے لگتا ہے، یہ گمان کرنے لگتا ہے، لیکن جب عالم دین کے قریب آتا ہے، عالم صاحب لوگ مجھے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں، لوگ مجھے بھگانے کی دھمکی دے رہے ہیں، لوگ مجھے تباہ و برباد کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں، تو عالم صاحب کہیں گے سنو، آؤ میں تمہیں خواجہ غریب نواز کی داستان بتاتا ہوں، آؤ میں تمہیں خواجہ غریب نواز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جب خواجہ غریب نواز ہندوستان کی دھرتی پہ آئے، جب خواجہ غریب نواز اپنا پڑاؤ ہندوستان میں ڈالے، جب خواجہ غریب نواز انا ساکر، جب خواجہ غریب نواز ہند کی دھرتی پہ تشریف لائے،
वहाँ पे सबसे पहले अपना क़याम, वहाँ पे सबसे पहले अपने आप को रोके जहाँ पे राजा के ऊँट बैठा करते थे। तो उनके दरबार के लोग आए, कहने लगे ए बाबा आप यहाँ से चले जाए, यहाँ पे मेरे ऊँट बैठते हैं, आप यहाँ से चले जाए। बाबा ने कहा हम थोड़ी देर आराम कर रहे हैं, उसके बाद हम दूसरी जगह यहाँ से चले जाएंगे, दूसरी जगह बैठ जाएंगे। लेकिन लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये मेरे ऊँट के बैठने की जगह है, ये राजा के ऊँट के बैठने की जगह है, आप यहाँ से निकल जाए, आप यहाँ से रवाना हो जाए। तो करीम नवाज वहाँ से जाते जाते कहा था ए नादानो सुन लो, लगता है तुम मुझको पहचानते नहीं, मैं तुम्हारी नगहबान सिर्फ एक फकीर मालूम होता हूँ। तो आज मैं दिखाई दे रहा हूँ कि फकीर के अंदर ताकत कितना हुआ करती है, फकीर के अंदर पावर कितना हुआ करता है। करीम नवाज जाने लगे, कहते हैं सुनो मैं यहाँ से उठ के दूसरी जगह जा रहा हूँ, अब यहाँ पर तुम्हारे ऊँट ही बैठेंगे। फिर आलिम साहब कहेंगे सुनो और पूरा वाक्य तुम सुनो। उसके बाद बात आगे बढ़ती है, कहते हैं करीम नवाज वहाँ से उठ के चले गए। लेकिन जो ऊँट की रखवाली किया करते थे जब आए ऊँट को देखने के लिए आए, सुबह हो चुकी है, ऊँट को उठा रहे, ऊँट उठ नहीं रहे हैं, परेशान हो गए हैं। दौड़ते दौड़ते राजा के पास जाते हैं, कहते हैं राजा गजब हो गया, क्या हो गया मेरे नौकरों, बताओ मेरे खादिमों क्या हो गया। कहते हैं सुनो राजा, जहाँ पर आपके ऊँट बैठा करते थे वहाँ पे कर कुछ फकीर बैठे हुए थे, अल्लाह वाले मालूम हुआ करते थे। लेकिन मैंने उनसे कहा तुम यहाँ से उठकर दूसरी जगह चले जाओ। लोग जाने से पहले ये कहा मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ, अब यहाँ पे तुम्हारे ऊँट ही बैठेंगे। उन्होंने ये कहा तो उसको पता चल गया ये कोई आम इंसान नहीं है, लगते हैं ये नबी के आशिक हैं, नबी के दीवाने हैं, नबी के मानने वाले हैं, नबी के मस्ताने हैं। इसलिए कि जो नबी का दीवाना होता है, जो नबी का आशिक होता है, जो नबी का मस्ताना होता है, उसका हुक्म जमीन पर भी होता है, उसका हुक्म शक्ल हदर पर भी होता है, उसका हुक्म समंदरों पर भी होता है, उसका हुक्म दरख्तों पर भी होता है, बल्कि अल्लाह की अता से उसका हुक्म कायनात के ज़र्रे पे होता है, कायनात के रेज़े पे होता है। अरे सुन लो, क़यामत आ जाएगी, हमारे तुम्हारे ऊँट उठाने से ऊँट कभी नहीं उड़ सकते। अगर तुम ये चाहते हो कि ऊँट उड़ जाए, लोगों को तलाश करना बाद में, पहले फकीरों को तलाश करो, उन बाबाओं को तलाश करो। थोड़ी देर के बाद जब लोग दौड़ के जाते हैं, कहते हैं बाबा मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझको माफ कर दीजिए, हम लोग नादान हैं, हम लोग राजा के यहाँ काम करते हैं, हमें नहीं मालूम था कि आप अल्लाह वाले हैं, मेरी गलती को माफ कर दीजिए। अल्लाह वाले ऐसे होते ही गलती को माफ कर दिया करते हैं, दरगुजर कर दिया करते हैं, लोगों की खताओं को नहीं देखा करते, उन पर कितना ही सुनने कर लिया कर। लेकिन जब मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, खुलूस के साथ, प्यार के साथ कोई वली के दरबार में आता है, अगर अदला रहता है उठा के आसमान बना दिया करते हैं, अगर ज़र्रा रहता है आफ़ताब बना दिया करते हैं, अगर कतरा रहता है समुद्र में तब्दील कर दिया करते हैं। ये होता है औलिया किराम के अंदर इख्तियार, ये होता है पावर। इतने भी बेबस नहीं मेरे दोस्तों। और आलिम साहब से आप पूछेंगे तो आलिम साहब ये कहेंगे सुनो मत घबराओ, इतने पे बस नहीं हुआ। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा अरे जाओ तुम्हारे ऊँट खड़े हो गए होंगे, इतना कहना था। वो सारे लोग दौड़कर आते हैं, ऊँट खड़े हो गए, सब परेशान हो गए, हम इतना मारे इतना पीटे लेकिन ऊँट खड़े नहीं हुए। लेकिन जैसे बाबा ने कहा उसे खड़े हो गए। अब मुझको कहने नहीं दिया जाए, जिस ऊँट को हिंदी के धरती पे अताए रसूल मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज ने बैठा दिया, दुनिया की हुकूमत के खुदाम कोशिश करने के बावजूद, मारने के बावजूद, ऊँटों को मारने के बावजूद उठा ना सके। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाले हैं, हम तो गरीब नवाज से प्यार करने वाले हैं। अरे जब तक हिंद में गरीब नवाज का रोज़ा चमकता रहेगा, इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का मुसलमान। तकबीर, रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान के मुसलमान। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे दोस्तों, जब भी दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा जाए तो मोहब्बत के साथ। हमारी माँ बहनें भी सुन रही हैं, ये सिर्फ वाक़या सुनने के बाद
اپنی زندگی میں اس کو عملی جامہ پہنائے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کا نام کیا ہے بولیے؟ چچا آپ بولیے کیا ہے؟ قرآن۔ کون سی کتاب؟ قرآن۔ قرآن کس کی کتاب ہے؟ بہت دھیمی گتی سے ہم لوگ جواب دے رہے ہیں۔ قرآن کس کی کتاب ہے؟ کس پر نازل ہوئی ہے؟ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کے بعد پڑھی جانے والی کتاب کا نام ہے بخاری شریف، مسلم شریف، صحیح ستہ۔ اس کے بعد آپ اولیاء، آپ جو ہے صوفی صاحب، پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس آئیں گے، کہیں گے پیر صاحب ہمیں یہ بتائیے کوئی ایسی چیز پڑھیں جس کی وجہ سے مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ پیر صاحب آپ کو یہی جواب دیں گے، کہیں گے آپ دلائل الخیرات شریف کا ورد کریں۔ کیا کہیں گے؟ آپ دلائل الخیرات شریف کا ورد کریں۔ ان کے رائٹر کا نام ہے حضرت سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کہتے ہیں کہ تقریباً 12,000 مریدین تھے اور ان میں سے اکثر ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ آخر اس کتاب کی خصوصیت کیا ہے کہ جس کو اگر انسان سنی صحیح العقیدہ ہو، اپنے پیر و مرشد سے اجازت لے کر اگر بلا ناغہ روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھے تو مرنے سے پہلے اللہ کا ولی بن جائے گا اور اللہ کا اچھا اور سچا بندہ بن جائے گا۔ اس کتاب لکھنے کی وجہ تسمیہ حضرت سلیمان جزولی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں جنگل سے گزر رہا تھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ نماز کا وقت بالکل تنگ ہے، وقت بالکل کم رہ گیا ہے، اگر میں نماز نہ پڑھتا تو میری نماز قضا ہو جاتی۔ سامنے کیا دیکھ رہے ہیں کہ کنواں موجود ہے، سامنے کنواں موجود ہے، ڈول ہے اور رسی نہیں ہے، یا رسی ہے یا ڈول نہیں ہے، اختلاف کے ساتھ میرے دوستوں پریشان ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک چھوٹی سی بچی جو کم عمر ہے، کم سن ہے، دوڑ کر آتی ہے، کہتی ہے بابا آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ بابا آپ اتنا تعجب میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں بیٹی بات دراصل یہ ہے کہ نماز کا وقت بالکل کم ہے، اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میری نماز قضا ہو جائے گی۔ بابا کہتے ہیں، بیٹی کہتی ہے بابا اتنا پریشان آپ کیوں ہو رہے ہیں؟ لڑکی اپنا لعاب، اپنا تھوک نکالتی ہے، نکالنے کے بعد کنویں میں ڈال دیتی ہے۔ جیسے ہی ڈالنا تھا بغیر رسی کے، بغیر ڈول کے پانی اوپر موجے مارنے لگا۔ حضرت سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ وضو بناتے ہیں، وضو بنانے کے بعد نماز ادا کرتے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو لڑکی کو تلاشتے، کہتے ہیں بیٹی تجھے اللہ کے نبی کا واسطہ ہے، اس چھوٹی سی عمر میں اللہ نے تیرے مقام کو اتنا بلند کیسے کر دیا کہ تو نے اپنا تھوک کنویں میں ڈال دیا، بغیر رسی کے، بغیر ڈول کے کنویں کا پانی اوپر موجے مارنے لگا۔ لڑکی کہتی ہے بابا یہ تو ایک راز کی بات تھی، میں بتانے والی نہیں تھی، لیکن آپ نے جس نبی کا واسطہ دیا ہے، جس پیغمبر کا واسطہ دیا ہے، اسی نبی پر میں کثرت سے درود پاک پڑھتی ہوں۔ اللہ درود پاک کی برکت سے اگر میں اپنے تھوک کو جو کنویں میں ڈالتی ہوں، میرا یہ اپنا کمال نہیں ہے بلکہ درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے کنویں کے پانی کو اوپر کر دے گا، مجھے کہنے نہیں دیا جائے۔ آخر اس میں کمال کس کا تھا؟ ارے کمال لڑکی کا نہیں تھا بلکہ اس کی والدہ کا تھا کہ اپنے بچی کو عاشقہ بناتی تھی، اپنے بچی کو اپنے بچی کے دل میں نبی کی محبت پیدا کرتی تھی۔ اگر آج یہ چاہتے ہو کہ میرے بچے کامیاب رہے، آج یہ چاہتے ہو میرے بچے دنیا میں عزت پائیں، اگر آج یہ چاہتے ہو میرے بیٹے دنیا میں شہرت پائیں، اپنے بچوں کے دلوں میں عشق نبی پیدا کر دو۔ عشق نبی کی برکت سے اللہ مصیبتوں کو ٹال دے گا، گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما دے گا۔ میرے دوستو بات اس میں صرف لڑکی کے اندر اتنی کوالٹی نہیں بلکہ اس کے اندر جو کوالٹی، جو خوبی، جو اتنا بڑا اسے مقام ملا، سب سے بڑا کردار اس میں ان کے والدین کا تھا۔ اگر ان کے والدین اگر پڑھے لکھے نہ ہوتے، اگر ان کے والدین دیندار نہ ہوتے تو اتنا بڑا مقام
उस बच्ची को न मिल पाता। पता क्या चला, अगर बच्चे को अगर आप सुधारना चाहते हैं, सबसे पहले वालिदैन के अंदर बदलाव आना चाहिए, सबसे पहले वालिदैन के अंदर चेंजिंग आनी चाहिए। इसलिए मेरे दोस्तों ये कहता हूँ कि मेरे भाइयों, आप आधी रोटी खाइए लेकिन अपने बच्चों को कुरान की तालीम दीजिए, अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम दीजिए। जब बच्चे के अंदर दीनी तालीम आ जाएगी, इंशाअल्लाह किसी भी माँ बाप को परेशान नहीं किया जाएगा, बल्कि बच्चे अपने वालिदैन के कदम को चूमेंगे, अपने वालिदैन के हाथ को पोसा देंगे और अपने घर में इस्लामी माहौल को नाफिज करेंगे, उलमाए किराम की इज्जत करेंगे, बड़ों का अदब करेंगे, छोटों पर शफकत करेंगे, मोहल्ले से मुआशरे से सोसाइटी से तमाम तर बुराइयों का खात्मा करेंगे। कब करेंगे? जब आपके बच्चों के अंदर दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम होगी। इसीलिए जितना जरूरत इस दौर में दुनियावी तालीम की है, उससे कहीं बढ़कर दीनी तालीम की जरूरत है। जब बच्चे के अंदर दीनदारी आ जाएगी, इंशाअल्लाह ताला उसे जिंदगी गुजारने का सलीका मिल जाएगा। इसीलिए मेरे दोस्तों, जो आपके गांव का मदरसा है, इसे आप मजबूत करें। जब इसे मजबूत करेंगे, इंशाअल्लाह आप भी मजबूत होते चले जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, जो नबी का दीवाना होता है, जो नबी का आशिक होता है, इसी दुरूद पढ़ पढ़कर उसका मकाम कितना बुलंद हो जाया करता है। आज इतनी बड़ी हम तादाद में है, फिर भी हमारे दिल में दहशत है, फिर भी हमारे दिल में खौफ है, फिर भी हमारे दिल में डर है। आइए मैं तुमको बताता हूँ, इस वक्त जो यहूद और नसारा अभी से नहीं बल्कि शुरू ही से लेकर मुसलमानों के दुश्मन और ये चाहते हैं कि मुसलमानों को तबाह कर दिया जाए, मुसलमानों को बर्बाद कर दिया जाए, इस रुए जमीन से इनका नामो निशान मिटा दिया जाए। एक बहुत बड़ा जलसा कराया गया, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कराई गई, बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई, जिसमें ईसाई के बड़े बड़े पोप, ईसाई के बड़े बड़े बादशाह और ईसाई के बड़े बड़े आलिम खड़े हो गए। उनमें से एक बूढ़ा खड़ा हुआ, कहता है, बादशाह, अगर तुम इस्लाम को कमजोर करना चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि इस्लाम के मानने वाले कम हो जाए, तुम ये चाहते हो कि इस्लाम की जो बुलंदी दिन ब दिन हो रही है वो रुक जाए, एक ही तरीका है कि तुम खालिद बिन वलीद के गर्दन को तुम तन से जुदा कर दो, तुम खालिद बिन वलीद के गर्दन को तन से जुदा कर दो। बादशाह कहता है, बूढ़ा तू बैठ जा। उसके बाद उसका एक आलिम खड़ा होता है जो फसीहुल लिसान है, बलीगुल बयान है, तरीकुल लिसान है, खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद तकरीर कर रहा है, लोगों को समझा रहा है, लेकिन अचानक जुबान रुक जाती है, अचानक जुबान खामोश हो जाती है, जुबान से बोलना चाह रहा है फिर भी बोल नहीं पा रहा है, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना चाह रहा है फिर भी पहुंचा नहीं पा रहा है। तो बादशाह कहता है, तू तो कह रहा था मैं फसीहुल लिसान हूँ, तरीकुल बयान हूँ, लेकिन आज तेरी जुबान को क्या हो गया, तेरा हुनर क्या है, तेरी क्वालिटी कहाँ है, तू कुछ बोल नहीं पा रहा है, तो अपने हुनर को लोगों के सामने तू जाहिर नहीं कर पा रहा है। वो कहता है, उसकी जुबान पे कपकपी तारी हो जाती है, जुबान लड़खड़ाने लगती है। बादशाह कहता है, आखिर बोल, तुझको हो क्या गया, आखिर तू बोल क्यों नहीं पा रहा है। वो जवाब देता है, सुनो सुनो, कसम है, उस कसम है रब की जिस पर तुम ईमान लेकर आए हो, मैं ईमान लेकर आया हूँ। सुनो सुनो ईसा इस्लाम के मानने वालों, सुनो सुनो। वो बात अब ईसाई जो है, ईसाई का आलिम खड़ा होकर कहता है, जो खुदा पर तुम ईमान लेकर आए हो उस खुदा पर मैं भी ईमान लेकर आया हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों, इतना कहता है, उसके बाद कहता है, अगर तुम ये चाहते हो कि इस्लाम को सफाया कर दिया जाए, इस्लाम को निस्तो नाबूद कर दिया जाए, इस्लाम को तबाह बर्बाद कर दिया जाए, एक ही तरीका है कि खालिद बिन वलीद को निस्तो नाबूद कर दिया जाए। खालिद बिन वलीद के जिस्म से तन को, खालिद बिन वलीद के तन से गर्दन को जुदा कर दिया जाए। इतना कहना था। कहता है, अगर आपको यकीन ना है तो आप मजमे में से किसी को मोहम्मद का वास्ता देकर आप खड़ा करवाए, यकीनन इसमें कोई नबी का दीवाना बैठा हुआ है, कोई नबी का आशिक बैठा हुआ है, कोई नबी का मानने वाला बैठा हुआ है, जिसकी दहशत से मेरी जुबान काम नहीं कर रही है, जिसको रोबो दबदबा की वजह से मेरा हुनर जो है बर्बाद हो गया है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। उतने में बादशाह कहता है, कोई अगर इंसान है जिसकी
आवाज बहुत बुलंद हो, बीच में खड़े होकर आवाज दे दे, तुझे अल्लाह के नबी का वास्ता है, जिस नबी पर तुम ईमान लेकर आए हो, अगर कोई इंसान आशिक रसूल इसमें बैठा हुआ है तो मजमे में खड़ा हो जाए। थोड़ी देर के बाद एक इंसान खड़ा होता है जिसके चेहरे पे नूर है, और इस चेहरे पे नूर है, खड़ा होता है। उसके बाद सारे लोग दहशत में आ जाते हैं। आखिर ये हजारों लाखों के मजमे में तने तनहा कैसा आ गया? बादशाह कहता है खबरदार, अपनी अपनी तलवार कोई न्याम से ना निकाले, सारे लोग अपनी तलवार को अपने न्याम में डाल ले। मैं इससे ये जानना चाहता हूँ, कोई आम आदमी नहीं है, यकीनन ये कोई अल्लाह का खास बंदा है, यकीनन ये कोई आशिक रसूल है। अरे इंसान हजारों के बीच में तने तरह आया हुआ है, आखिर इसके अंदर हिम्मत कहाँ से आई? आखिर इसके अंदर हौसला कहाँ से आया? आखिर इसके अंदर से कुव्वत कहाँ से आई कि तने तरह मुगैरों के मजमे में ये आ गया? कहते हैं बोल तू आखिर कौन है, यहाँ पे कैसे आ गया है? क्या तुझको डर नहीं लगता है? कहता है मैं सिर्फ डरता हूँ तो अल्लाह से डरता हूँ। अगर मेरी पेशानी झुकती है अल्लाह की बारगाह में झुकती है, मेरा हाथ उड़ता है अल्लाह की बारगाह में उड़ता है। कहता है अपना नाम बता दो, तुझे तुम्हारे रब का वास्ता है, तुझे तुम्हारे पैगंबर का वास्ता है। खालिद बिन वलीद कहते हैं सुनो, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि मेरा नाम क्या है, सारे लोग तैयार हो जाओ, सारे लोग सुनने के लिए तैयार हो जाओ। सारी दुनिया जिससे कांपती है, सारी दुनिया जिससे डरती है, सारी दुनिया जिसका नाम लेकर लरज़ा व अल्लाह हो जाती है, अरे मेरा नाम खालिद बिन वलीद है, मेरा नाम खालिद बिन वलीद है। इतना सुनना था। बादशाह कहता है मुझे यकीन हो गया कि जो नबी का दीवाना होता है, जो नबी का मस्ताना होता है, जो नबी का आशिक होता है, वो किसी से नहीं डरता है, ना तो मौत से डरता है, ना तो धमकी से डरता है, ना लोगों से डरता है, ना ताकत से डरता है, ना रियासत से डरता है, ना हुकूमत से डरता है। अरे जिसके दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ हो, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, अल्लाह के अलावा वो किसी से नहीं डरता है। मुझको मानना पड़ेगा ये सच्चा आशिक रसूल है, ये सच्चा नबी का दीवाना है, ये सच्चा नबी का मानने वाला है। बादशाह कहता है तुमने अपना नाम तो बता दिया, लेकिन हमको ये भी बता दो तुम जितनी भी जंग किए हो, आखिर हर जंग में जीतने का राज क्या है? आखिर वजह क्या है? आखिर बात क्या है? तो खालिद बिन वलीद कहते हैं सुन लो, मुझको जो हर जंग में मुझे कामयाबी मिली है, और मैंने हर जंग को जिस जंग में मैंने शिरकत किया तो मैं कामयाब हुआ हूँ। ये खालिद की ताकत की वजह से नहीं, ये खालिद की ज़रूरत की वजह से नहीं, ये खालिद की हिम्मत की वजह से नहीं। हाँ मुझको हिम्मत मिली नबी के सदके में, हाँ मुझको ताकत मिली नबी के सदके में, मुझको शोहरत मिली नबी के सदके में, मेरे दिल से खौफ निकला नबी के सदके में, मेरे दिल से डर निकला नबी के सदके में, मेरे दिल से दहशत निकली नबी के सदके में, मेरे दिल में जब से नबी का इश्क पैदा हो गया है उस दिल से मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता हूँ। कहते आखिर बता दे राज क्या है, वजह क्या है, बात क्या है? तुम हर जगह में कामयाब हो जाते हो, कामरान हो जाते हो। कहते सुनो मैं जो हर जंग में जीतता हूँ अपनी बदौलत नहीं, ये जो मेरे सर पे टोपी देख रहे हो या अमामा देख रहे हो, इसकी बरकत से। खालिद बिन वलीद से बादशाह कहता है आखिर के बताओ, आखिर अमामे के अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी है, कौन सी ऐसी खूबी है जिसकी वजह से तुम्हें कामयाबी मिल जाती है? कहते सुनो इस टोपी के अंदर, इस अमामा शरीफ के अंदर मेरे नबी का मुँह मुबारक है। अरे मुझको तहरीर दिया जाए, अरे जब नबी के मुँह मुबारक में ये ताकत है तो नबी के साथ में कितनी ताकत होगी? अरे जिस दिन हम सच्चे पक्के अच्छे मुसलमान बन के हमारे अखलाक को देखकर, हमारे किरदार को देखकर, हमारी रफ्तार को देखकर, हमारी खुलूस को देखकर, हमारी मोहब्बत को देखकर लोग यही कहेंगे ये तो नबी का दीवाना मालूम होता है। जिस रास्ते से गुजर जाएंगे लोग कलमा पढ़ के मजे में जबान लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत।
जिस दिन हम पक्के और सच्चे मुसलमान बन जाएंगे, यकीनन जिस रास्ते से आप गुजरोगे, यकीनन लोग यही कहेंगे ये तो सच्चा नबी का दीवाना मालूम होता है। जैसे मैंने किताबों में पढ़ा था, लोगों से सुना था, वाकई में ऐसे मुसलमान हमें नजर आ रहे हैं। तुम्हें जुबान से बताने की जरूरत न पड़ेगी, बल्कि तुम्हारे आमाल ये बताएंगे कि पक्का और सच्चा मुसलमान बनाता, ये पक्का और सच्चा मुसलमान मालूम होता है। मेरे दोस्तों, मैं एक वाकया और हज़रात के सामने बयान करता हूँ। मेरे नौजवानों, अल्लाह ने ये जवानी दी है, इस जवानी पूरी जिंदगी बरकरार नहीं रहेगी। आज नहीं तो कल हम बूढ़े हो जाएंगे। हो सकता है बूढ़े होने से पहले पहले हम दुनिया से इंतकाल कर जाएं, लेकिन ये जवानी हमारी बरकरार रहेगी न रहे, ये जवानी हमारी बरकरार नहीं रहेगी। आज नहीं तो कल हम बुढ़ापे की तरफ पहुंच जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, ऐसे ऐसे जवान इस्लाम में गुजरे हुए हैं, इस्लाम की हिस्ट्री में मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद इंसान के अंदर जोश पैदा हो जाता है, जिसको पढ़ने के बाद इंसान के अंदर जज्बा पैदा हो जाता है। इंसान उस तरह पढ़ने की कोशिश करता है, अपनी जिंदगी में उनके किरदार को, अपने जिंदगी में उनके किरदार को अमली जामा पहनाने की कोशिश करता है। तीन इंसान जो मुल्क के शाम में थे, तीनों भाई थे और जंगल में शिकार करने के लिए गए हुए थे। बादशाह अपने वजीर को लेकर ईसाई बादशाह पहुंचता है, उसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर लेता है। गिरफ्तार करने के बाद अपने घर पे लेकर आता है। उसके बाद कहता है तुम अपने दिल से नबी की मोहब्बत को निकाल दो, अपने दिल से नबी की अज़मत को निकाल दो, अपने दिल से नबी की उल्फत को निकाल दो, अपने दिल से नबी के प्यार को निकाल दो, अपने दिल से नबी के इश्क को निकाल दो। तीनों भाइयों ने कहा जान मांगोगे जान देंगे, माल मांगोगे माल देंगे, ये हमसे कभी ना हो सकेगा कि नबी का चाहो जलाल दे, ये हमसे कभी ना हो सकेगा। फिर उसके बाद कहते हैं ये गुलामे मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, बल्कि अपनी जुबान में ये कह रहे थे ये गुलामे मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं किया करते हैं। अरे तुमको जान की धमकी दे रहे हो, एक नहीं अगर अल्लाह हमें 1000 जान दे दे, मैं जान को कुर्बान कर दूंगा, लेकिन अपने नबी की जात के साथ बेवफाई नहीं कर सकता, मैं इस्लाम के साथ बेवफाई नहीं कर सकता, गद्दारी नहीं कर सकता। बादशाह कहता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। बादशाह कहता है तेल लाया जाए, कढ़ाई लाई जाती है, उसके बाद तेल गर्म किया जाता है, बड़े भाई को पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद कहा जाता है ऐ लोगों सुनो, अब भी तुम्हारे पास टाइम है, अब भी तुम्हारे पास मौका है। अगर तुम जान बचाना चाहते हो तो अपने दिल से नबी की मोहब्बत को निकाल दो, अगर तुम जान बचाना चाहते हो तो अपने दिल से नबी की उल्फत को निकाल दो, अगर तुम जान बचाना चाहते हो तो अपने दिल से नबी का प्यार निकाल दो। लेकिन बड़े भाई ने कहा तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मैं अपने दिल से नबी की मोहब्बत को नहीं निकाल सकता, अपने दिल से नबी के प्यार को नहीं निकाल सकता, अपने दिल से नबी के इश्क को नहीं निकाल सकता, इसलिए कि मुझे जिंदगी मिली है मुस्तफा के सदके में, बंदगी मिली है मुस्तफा के सदके में, सलीका मिला है मुस्तफा के सदके में, तरीका मिला है मुस्तफा के सदके में। आज मैं जो खा रहा हूँ मुस्तफा के सदके में, पी रहा हूँ मुस्तफा के सदके में, जिंदगी गुजार रहा हूँ मुस्तफा के सदके में। मैं हर किस ऐसा नहीं कर सकता। उन तीनों भाई मौजूद हैं, सबकी तीनों भाई की मौजूदगी में बड़े भाई को खोलते हुए तेल में डाल दिया जाता है। थोड़ी देर के बाद उसकी रूह कब से कुमसरी से परवास हो जाया करती है। दोनों भाई के दिलों में और हिम्मत और हौसला आ गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे भाई के इन लोगों ने मार दिया, गरम तेल में डाल दिया, खौलते तेल में डाल दिया, उनका ईमान कमजोर हो गया। नहीं, बल्कि ईमान में और तक़वियत आ गई, ईमान और कड़ी हो गया, ईमान और मजबूत हो गया। इसलिए मेरे दोस्तों, जब बड़े भाई को डाल दिया जाता है, छोटे उसके मझले भाई से कहा जाता है अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो अपने दिल से नबी की मोहब्बत को निकाल दो, अपने दिल से नबी के प्यार को निकाल दो, अपने दिल से नबी के इश्क को निकाल दो। मझला वाला भाई कहता है नहीं, जिस तरह मेरा भाई अल्लाह की राह में शहीद हो गया, मैं भी शहीद होना पसंद करूंगा, लेकिन मैं अपने दिल से नबी की शरीयत के साथ में मजाक नहीं कर सकता, नबी की
मोहब्बत को मैं निकाल नहीं सकता। दूसरे भाई को भी खौलते तेल में डाल दिया जाता है। अब वजीर आगे आता है, कहता है बादशाह ये छोटा वाला जो भाई है इसको आप मेरे हवाले कर दे, मेरे हवाले कर दे। मैं इसको घर ले जाऊंगा, ले जाने के बाद किसी भी तरीके से, किसी भी हिला से, किसी भी बहाने से मैं इसको ईसाई बना लूंगा। इतना कहना था मेरे दोस्तों। बादशाह उसके कहने पर उसको हवाले कर देता है, छोटे भाई को लेता है, लेने के बाद अपने घर पे लाता है। अपने वजीर कहता है मेरी बेटी आओ, आज इज्जत की बात है, आज शान की बात है, आज मकाम की बात है। अगर तुम ये चाहती हो हमें मजीद बादशाह इज्जत दे, अगर तुम ये चाहते हो कि मजीद हमें बादशाह मालो दौलत से नवाजे, एक में एक बंदे को लेकर आया हूँ, तुम उसके पास जाओ, उसके दिल के बहला कर उसके दिल से नबी की मोहब्बत को निकाल दो, नबी की असमत को निकाल दो, नबी के प्यार को निकाल दो। लेकिन उस इंसान को ये मालूम नहीं था कि जो नबी का दीवाना होता है, जो नबी का आशिक होता है, कि सारी दुनिया को, सारी दुनिया की दौलत को उसके कदमों पे मार रख दिया जाए, फिर भी अपने दिल से नबी की मोहब्बत को नहीं निकालता, बल्कि कहता है ऐसी दौलत को हम ठोकर मारते हैं, हम हवेली में नहीं, हम रोड के किनारे रह सकते हैं, लेकिन नबी से, अपने दिल से नबी की मोहब्बत को नहीं निकाल सकते, नबी के प्यार को नहीं निकाल सकते। इतने पे बस नहीं, उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद अपनी बेटी को कहता है बेटी तुम्हारी जिम्मेदारी है, जाओ इसके दिल को बहलाओ, दिल को बहलाने के बाद इसको तुम ईसाई धर्म में लेकर आओ। एक रात गुजर गई, लड़की जब पहली रात आई क्या देखती है कि लड़का इबादत कर रहा है, जब दूसरी रात आती है क्या देखती है लड़का इबादत कर रहा है। तारीख ये बताती है तकरीबन 39 रात हो गई, लेकिन लड़के ने लड़की की तरफ निगाहों आकर नहीं देखा। आखिर लड़की ने कहा ऐ पाक इंसान, ऐ पाक बासु वाले इंसान, आखिर तेरे दिल में किसकी मोहब्बत है, तेरे दिल में किसका प्यार है, तेरे दिल में किसका इश्क है, तेरे दिल में किसकी उल्फत है, तेरे दिल में किसकी मोहब्बत है। ना जाने कितने जवान मेरी तरफ देखकर, ना जाने कितने नौजवान हमारी तरफ देखकर अपने धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को इख्तियार कर लेंगे, लेकिन तू नबी का मानने वाला है, तू नबी का दीवाना है। आखिर बता तेरे दिल में किसकी मोहब्बत पैदा हो गई है। तो पाक इंसान जवाब देता है, नौजवान जवाब देता है अरे सुन लो मेरी आंखों में गुंबद खजरा वाले का गुंबद का रोजा, मेरी आंखों में मदीने वाले आका का जलवा मौजूद है, और मेरे दिल में नबी की मोहब्बत बढ़ता है। अरे जिसके दिल में नबी की मोहब्बत पैदा हो जाती है वो किसी और की तरफ नहीं देखा करता है। लड़की कहती है ये तो मुझे बहुत अच्छा इंसान मालूम होता है, मैं तकरीबन 39 रात 40वीं रात हो गई, लेकिन तूने मेरी तरफ देखा नहीं, मेरा दिल तेरे तरफ आ गया है, तेरे नबी के दीन की तरफ आ गया है। अरे देर मत कर, हाथ बढ़ा, कलमा पढ़ा, मुसलमान बना। तारीख ये बताती है कि उस बंदे के नौजवान ने जब अपनी आंखों को बचाया, अपने दिलों को बचाया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके हाथों पे गैरों को कलमा पढ़ा दिया। अगर आज का नौजवान अपनी आंखों से दूसरे के, अपने आंखों से गंदी चीजों को निकाल कर नबी के गुंबद खजरा को बसा ले और अपने दिल में नबी की मोहब्बत को बसा ले, इंशाअल्लाह आपके कदम की बरकत से भी लोग मज़हब इस्लाम में दाखिल होते हुए नजर आएंगे। इतने पे बस नहीं मेरे दोस्तों, जो हाथ अल्लाह की राह में करता है वो ज़राएगा नहीं जाता, जो कदम अल्लाह की राह में करता है वो बेकार नहीं होता है। इंसान ये कहता है हाथ कट गया है, मुर्दा हो गया है, इंसान ये कहता है पैर कट गया है, मुर्दा हो गया है, इंसान ये कहता है आंख निकल गई है, इंसान मुर्दा हो चुका है, इंसान के जिस्म से गर्दन जुदा हो गई है, इंसान मुर्दा हो चुका है। नहीं मेरे दोस्तों, आगे चलो बात से हो जाएगी। लड़की को लड़की अस्तबल जाती है, दो घोड़े लेकर आती है, दोनों उस पे सवार होते हैं। सवार होने के बाद जंगल की तरफ निकलते हैं। जैसे ही जंगल की तरफ निकले अचानक पीछे घोड़ों के आने की आहट मिलती है, तो दोनों रुक जाते हैं, सोचते हैं लग रहा है बादशाह ने मेरे पीछे सिपाहियों को भेज दिया है, मेरे पीछे लश्कर को भेज दिया है। दोनों रुक जाते हैं। अचानक क्या देखते हैं दोनों लोग कि मेरे ये वही दोनों भाई हैं जो अपनी मेरे आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने बादशाह ने खौलते हुए तेल में डाला था। तो छोटा भाई पूछता है भाई तुम तो मेरी आंखों के सामने खौलते हुए तेल में बादशाह ने डाला था, लेकिन तुम तो सही और सालिम हो। तो बंदा जवाब देता है अरे सुनो जो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अरे
जावेदानी जिंदगी पाया जाया करता है। इसीलिए मेरे दोस्तों ये हाथ उठे तो नबी के इश्क में उठे, ये कदम उठे तो नबी के इश्क में उठे, ये जुबान खुले तो नबी के इश्क में खुले, ये आंख देखे तो नबी के इश्क में देखे, ये कान सुने तो नबी के इश्क में सुने, ये अक्ल इस्तेमाल हो तो नबी के इश्क में इस्तेमाल हो। जब हमारा जीना मरना मुस्तफा के नाम हो जाएगा, इंशाअल्लाह हमारे भी कदम की बरकत से अल्लाह गैरों को कलमा पढ़ने की तौफीक दे देगा, तो हम नेक हो जाएंगे, परहेजगार हो जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमें जरूरत इस बात की है कि सबसे पहले हम अपने अंदर बदलाव लाएं। जब अपने अंदर हम बदलाव लाएंगे, इंशाअल्लाह हमारे बच्चों के अंदर बदलाव आ जाएगा। हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेटा नमाज पढ़ो, बेटा कुरान पढ़ो, बेटा पढ़ो का अदब करो, बेटा छोटों पर शफकत करो, नहीं। जब हम नेक बन जाएंगे, इंशाअल्लाह हमारे बच्चे भी नेक बन जाएंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अगर हमारे बोलने में किसी तरह की कोई गलती या खामी हो गई हो तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।